اپنے اپنے کمرے میں دیکھ لیں، سب ساتھی اپنے اپنے جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیں کہ کوئی ڈسٹربنس جو ہے وہ ہمیں نہ ہو. اگر کوئی بچے کھیل بھی رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ وہ نزدیک نہ کھیلیں. اور ہم انشاءاللہ ریویژن کرتے ہیں آج. تو ہم سب سے پہلے کیسر بھائی کے مشکور ہیں کہ وہ بیچارے ملتان سے ابھی آئے ہیں اور آ کے انہوں نے جلدی جلدی میں یہ سب کچھ تیار کیا صرف 10 منٹ کے وقفے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. بہت شکریہ سر. اچھا یہ کیسر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کون کون ساتھی ہیں ذرا آپ کہہ دیں گے. اپنے کیسر بھائی آپ ذرا بتا دیں ہمیں. سر غلام سرور صاحب ہیں، مسعود اختر صاحب ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، رام سرور سجاد صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ جی سجاد صاحب ہیں، کیسر صاحب، غلام سرور صاحب، سجاد صاحب بھی بتایا، اور بلال حسن صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور ان کے علاوہ کون ہے؟ افضل بھی ہو جاتی ہے 2 منٹ. ماوز بھائی بھی ہیں. ارے مہد بھائی بھی آگے ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. آج کل پارٹیسپینٹس ابھی تک جو ہیں وہ 15 ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا دیکھیں کیسر صاحب ہو گئے، غلام سرور صاحب ہو گئے، سجاد صاحب ذرا پلیز. سجاد صاحب سر آپ کی آواز سجاد صاحب کی ٹھیک نہیں آ رہی. اکرم صاحب. سر آپ کی آواز مجھے کلیئر آ رہی ہے. سجاد صاحب کو، اکرم صاحب کو. اکرم صاحب نہیں ہیں جی ابھی. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب تشریف لے آئے ہیں، غلام سرور صاحب آ گئے ہیں، مہد بھائی آ گئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے گا کہ ڈاکٹر اختر صاحب بھی ہیں اپنا آن لائن. اختر صاحب محمود اختر صاحب ہیں جی، محمود اختر صاحب ہیں. نہیں محمود اختر نہیں، ڈاکٹر اختر ہوگا، ڈاکٹر انجینئر اختر صاحب. سر جی کچھ آن لائن ڈاکٹر صاحب. جی سر. نہیں مسعود اور اختر ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، کل وہ ایز اے پیسو لسنر سنتے رہے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا انٹریکٹیو پروگرام تھا، تو آج وہ آن لائن ہے تو ذرا بول لیں. نہیں ہے. دیکھیے گا بلال صاحب. بلال جی سر ادھر ہی ہوں. جی ڈاکٹر بلال صاحب. اب ہمارے پاس 3 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں اور ڈاکٹر اختر صاحب ابھی نہیں آئے. جی اس کے علاوہ باقی ساتھی جو ہیں ذرا اپنے نام لکھوا دیں. سر میں ایک ایک کر کے بول دیتا ہوں. ڈاکٹر ذوالفقار جی صاحب ہیں، غلام سرور صاحب ہیں، مہد علی صاحب ہیں، محمود اختر صاحب ہیں. آپ محمود اختر صاحب تو ماشاءاللہ آپ ہی ہیں. مسعود اختر صاحب ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، سجاد احمد صاحب ہیں، عادل بھائی ہیں، علیان ہیں، اچھا جی. اسد عمران صاحب ہیں. نہیں افضل بٹ صاحب سے پہلے ایک منٹ جی، افضل بٹ صاحب سے پہلے کون ہے؟ مسعود اختر صاحب.
मसूद साहब, ठीक है। उसके बाद बिलाल, डॉक्टर बिलाल साहब हैं। फिर एक साहब है जिन्होंने बूस्ट वाइब्स लिखा हुआ है, उनका नाम मुझे नहीं पता। एक हवावे वाले हैं, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग भी हैं, इजाज कमर साहब, वो आज पहली दफा तशरीफ लाए हैं। इजाज कमर, वेलकम जी। माविद इजाज भाई कमर हैं। साहब वेलकम, बोलिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इजाज कमर बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेलकम प्लीज आपको। अच्छा जी, फारूक साहब है, फारूक साहब है, नदीम साहब है, और कुछ खवातीन हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक होगी बात। अब हम वैसे पहली तो बात यह है कि रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुरान मजीद का तर्जमा मैं सब साथियों से ये कहूँगा कि अगर ये ग्रामर ना भी पढ़ी हुई हो तो तब भी तर्जमा कर लेते हैं हम लोग। ग्रामर का मकसद जो है वो पढ़ने का आपको जरा अपने ज़हन में रख लें कि ग्रामर जिसने पढ़ी हुई है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी तरतीब से चले। कुरान मजीद की कोई आयत भी वो ले लेगा तो उसका तर्जमा करने की अहलियत उसके अंदर होगी। इस वजह से हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। और शुरू में मैं ये कहूँगा, प्रोफेसर साहब एक सेकंड दीजिएगा। महद अली साहब, महद भाई। जी जी। महद भाई, आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जरा आप देख लीजिए, अभी आपके माइक से शोर बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो जब आप नहीं बोले थे तब आपके माइक से शोर आ रहा था, तो जरा देखिएगा कोई हवा ना पड़ती हो डायरेक्ट आपके माइक पे, या थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है ना, पंखा बंद कर। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया महद भाई, बहुत शुक्रिया महद भाई आपका। तो महद भाई को आपने मेरी तरह बगैर पंखे के कर दिया। महद भाई को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए सर। नहीं एसी लगा लेंगे ना, एसी लगाएंगे। ये कैसे भाई ठीक हो नहीं, गया? इसका एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि पंखे के बिल्कुल नीचे ना बैठा जाए। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, टेबल इन लोगों ने किया नहीं एक साइड पर, वरना मेरा भी पंखा चलता और मैं एक साइड पे बैठ जाता। जी महद भाई, अब बहुत अच्छा, बेहतर शुरू है करें? जी, इंशाल्लाह। चलो ठीक जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करेंगे। और कैसर भाई सर, मैंने आऊज़ु बिल्लाह आपको पोस्ट की थी, आप वो दरमियान में यहाँ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अभी मुश्किल होगा। बिल्कुल लगा सकता हूँ सर। तो जरा लगाइए। आज इंशाल्लाह हम, जैसे अल्लाह ने कहा है कि फ़ाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तू कुरान मजीद को पढ़े तो अल्लाह ताला से, जो शैतान मरदूद है, उससे पनाह मांगो और अल्लाह की पनाह मांगो। तो साथियों, आज जो कुरान मजीद का पहला लफ्ज़ है, कल हमने जो किया था वो मुजारे किया था, याद है आपको? जो नए साथी हैं, एजाज कमर साहब जो हैं, ये कल में से टाइम लेंगे और जो कुछ हमने कल किया है इनके लिए अलग टाइम में दूंगा। बाकी साथी जो हैं वो मेरे साथ चलेंगे। मुजारे जब हमने कल एक पढ़ाया था तो जैसे ना बूदू से हमने मुजारे किया था, ना बूदू, ऐसा है जी सर। तो मेरा सवाल ये है कि उसके साथ मैंने कुछ हरूफ बताए थे कि ये हरूफ अगर हम पहले लगा दें तो उसके मानी हमारे ज़हन में आ जाते हैं। वो क्या थे? आतैन। जी, आतैन का मतलब है कि अलिफ है और ते है और ये है और नून है। एजाज का मतलब आप इसको बड़े एहतियात से सुनिएगा। एजाज का मतलब जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुन रहा हूँ जी, ठीक है। आप जरा एहतियात से, मैं आपसे अभी मैंने सवाल कर रहे हैं। ना बूदू, ये
یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے؟ یہ کیسر بھائی بتائیں گے. مضارع کا صیغہ ہے سر. جی مضارع کا صیغہ ہے. سجاد بھائی یہ بتائیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلا، اور اعجاز قمر صاحب ان کی بات غور سے سنیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مضارع ہے. اس کے سر ساری نہیں، اچھا ٹھیک ہے. ہم پوچھتے ہیں ماہد صاحب سے. ماہد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نعبدو لفظ تھا، یہ کس طریقے سے مضارع ہے؟ کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مضارع ہے؟ اور قمر صاحب کے لیے یہ ہے کہ مضارع وہ ورب ہوتا ہے جو ہمیں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے بتاتا ہے، کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم تا ہے لگاتے ہیں. جیسے نعبدو کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے. اب وہ کون عبادت کرتے ہیں، کون کریں گے، یہ ابھی ماہد بھائی بتانے لگے. سر نون آ گیا. نون چونکہ آتین کا لفظ ہے نا، الف پہ یہ نون، یہ یعنی کہ یہ مضارع اس لیے پتہ لگا کہ یہ مضارع شروع میں نون آ گیا. اچھا جی، شروع میں نون آیا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں کہ آخری لفظ جو ہے اس پر پیش ہے. پیش ہے، یعنی کہ شروع کے اندر نون آ گیا ہے اور آخر پر پیش ہے. جب بھی اس قسم کا لفظ آئے گا قمر بھائی تو وہ مضارع ہوگا، اور مضارع کے معنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہیں اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے. اردو کے اندر کیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے. قمر بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ قمر صاحب میرے ساتھ رہیں گے. اعجاز آپ سے پوچھ رہے قمر صاحب ہیں. نہیں. اعجاز جی السلام علیکم. جی اعجاز بھائی یہ پروفیسر صاحب آپ میں کو آپ سے سمجھا پوچھ رہے ہیں. رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے ان سب ساتھیوں سے مدد لے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. جیسے نعبدو ہے تو نون شروع کے اندر آ گیا اور آخر میں دال ہے اس کے اوپر پیش آ گئی، تو لہذا جو بھی پہلا لفظ اگر نون آئے گا یا اس کو ہم تبدیل کریں گے اور آخر پہ پیش ہو تو وہ مضارع ہوتا ہے. مضارع ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے. مضارع کے بارے میں نے کون سا ٹینس بتایا کہ مضارع کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ، دونوں. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو تا ہے تی ہے لگا دیں گے اور گا ہے کی ہے لگا دیں گے. اچھا یہ میں ابھی سب اس کو میں ابھی نعبدو کی بجائے اعوذ یہاں میں لکھنے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے آپ کا پہلا لفظ جو اعوذ باللہ، تو اعوذ اصل میں لفظ تھا اوذو، عین واو اور زال. اس سے پہلے ہم نے الف لگا دیا. الف کے معنی ہیں قمر بھائی، الف جو ہے نا اس کے معنی ہیں، جی سجاد بھائی بتائیں گے کہ الف کے کیا معنی ہیں؟ اس الف کے معنی ہے میں. بس اتنا ہی کافی ہے. قمر بھائی یاد رکھیں گے کہ الف شروع کے اندر آ گیا کسی فعل کے، کسی ورب کے، تو الف کے معنی ہوگا میں. تو اعوذ کا ترجمہ کریں گے غلام جی میں پناہ مانگتا ہوں. سرور بھائی اعوذ جی اس کا مطلب مانگنا. ہاں جی. اب اس کا اوذو کا مطلب ہے پناہ مانگنا. اگر الف لگا دیا اعوذ تو اس کے معنی کیا بنے گے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ
मैं पनाह मांगता हूँ। कमर भाई आप भी बताएं जरा, आऊज़ु के माने क्या होंगे? मैं पनाह मांगता हूँ। मैं पनाह मांगता हूँ। आगे लफ्ज लिखा हुआ है बिल्लाही, ऐसा है जी बिल्लाही। अब अगर आऊज़ु के साथ बे आ जाए तो इसका मतलब उर्दू के अंदर होता है किसी की पनाह में आना, तो वो बिल्लाही। और बे के माने होते हैं साथ, या यहाँ लगेगा की, तो क्या बनेंगे? आऊज़ु बिल्लाही, अल्लाह की, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। जी आपने आलियान बताओ बेटा, आऊज़ु बिल्लाही। मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान। सर भाई आप भी कहते हैं पनाह मांग, नहीं अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी बस इतना ही। कैसर भाई ये छोटा बच्चा है, लेकिन इससे पहले चूंकि पढ़ा हुआ है तो लिहाजा बच्चे हमसे ज्यादा होशियार होते हैं। आऊज़ु के साथ बे आ जाए तो ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है ना प्रेपोजिशनल वर्ब, अगर इंग्लिश के अंदर हो, हम इसको उर्दू में कहते हैं कि वर्ब के आगे कोई हर्फ लगा देना। जी सर, आऊज़ु उसके मानी बदल जाते हैं। आऊज़ु बी, जी, तो आऊज़ु बी आऊज़ु का बी मतलब होगा किसी की पनाह में आना, किसी की पनाह में आना। आऊज़ु मिन अगर होगा तो किसी से पनाह मांगना। हाँ जी, किसी से दूर रहने की पनाह मांगना, दूर रहने की पनाह मांगना। आऊज़ु बे का मतलब है किसी के नजदीक आने की या किसी की पनाह में आना, और आऊज़ु मिन अगर आ जाता तो इसका मतलब है किसी से दूर रहने की पनाह मांगना। जैसे कोई शरीर आदमी हो तो हम कहते हैं यार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, ऐसा है ना, अपनी जुबान में हम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो बिल्कुल वही जो कॉन्सेप्ट, पहले आप तर्जमा करेंगे आऊज़ु बिल्लाही। कैसे भाई आप तर्जमा करें आऊज़ु बिल्लाही? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ठीक है, कमर भाई दोहराएंगे इसको, एजाज भाई। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ठीक है, ये अपने अफजल भट्ट साहब भी जरा दोहरा देंगे। आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मैं बस इतना जी। अब आगे लिखा हुआ है मिनश शैतानिर रजीम, तो यहाँ वही आऊज़ु जो है यहाँ काम करेगा। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि यहाँ आऊज़ु हज़फ है, वही आऊज़ु यहाँ मिन के साथ भी लगेगा। अब हम कहते हैं आऊज़ु मिनश मिन, तो अब मैंने बताया था कि मिन आ जाए तो किसी से दूर रहने के लिए पनाह मांगना। जी जी समझ आई? जी। अब वो किससे दूर रहने के लिए है? लिखा हुआ है मिनश शैतान। शैतान के माने आते हैं आपको? शैतान ही होगा जी, शैतान ही होगा, ठीक है। और अर्रजीम जो है इसके मानी याद रखने हैं। अर्रजीम का मतलब होता है रद्द किया हुआ। अल्लाह से जब शैतान को अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार कर दिया था। तो अल्लाह ने इस इनकार के सजा के तौर पर उसको कहा था कि यहाँ से चले जाओ और तुम काफिर हो। तो उसको हम अपनी जुबान में कहेंगे मरदूद, कि जिसको रद्द किया हुआ हो। तो शैतान रजीम का मतलब क्या हो गया? कैसर भाई? से दूर रहने के लिए। शैतान रजीम का मतलब शैतान भी कह सकते हैं, शैतान मरदूद भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही। तो अब इसका तर्जुमा जो है
हाँ जी, आप इसका तर्जमा कीजिए जी मसूद भाई। आउज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, आउज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही, बिल्लाहि, अल्लाह ताला की, अल्लाह की, मिनश्शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है। यहाँ आपने ज़हन में रखना है कि जब मिन आ गया तो इसका मतलब है कि शैतान से दूर रहने की, तो वो हम बाद में कहेंगे। तो शैतान रजीम का मतलब क्या है? मरदूद शैतान से, मरदूद शैतान से दूर रहने के लिए। तो ये हम रद्द किए इत्तेफाक हुए किया था शैतान से। जी। बस अभी हम एक चीज पे इत्तेफाक करेंगे। कैसर भाई जरा आप तर्जमा ये करें कि हम उस पे इत्तेफाक कर लें, बाकी तर्जमे इसके काफी सारे होंगे। इसका जो लफ्जी तर्जमा बनता है वो सिर्फ इतना बनता है, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बस इतना बनता है तर्जमा इसका लफ्जों का। लेकिन इससे एक गलतफहमी ज़हन में आ जाती है, और वो क्या गलतफहमी है? अल्लाह से तो नहीं पनाह मांगा है। नहीं, वो हम तो है ना किसी से मांगते हैं हम, तो हम कहते हैं कि वो जो मांगने जो देने वाला है वो बड़ा है। जी। तो यहाँ वो गलतफहमी है, उसको दूर करने के लिए हम अपने पास से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दूर रहने के लिए। कैसर भाई आप हमारी हेल्प जी। इसका तर्जमा जो हम करें, इसका तर्जमा हम कैसे करेंगे? हमारा इत्तेफाक इस बात पे हुआ था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम का मतलब हम करेंगे कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से और इंटू में दूर रहने के लिए। जी, ब्रैकेट में दूर रहने के लिए, इसलिए कि वो जो इसके अंदर मफहूम है वो भी इसके अंदर आ जाए जी। अच्छा डॉक्टर गुलफ्तार साहब जरा आप भी दोहरा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से पहले करें ना, शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। अल्लाह की। अच्छा, नहीं, ये करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, मैं पनाह इसमें बहुत मांगता बड़ी हूँ गलती आ जाएगी। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। अल्लाह की। अब कहें आगे, शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। दूर रहने के लिए मतलब ये नहीं है कि मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ कि तू मुझे अल्लाह की पनाह दे दे, वरना लफ्जों का तर्जमा करेंगे तो ये बन जाएगा। आगे चलें जी। बिलाल भी एक दफा कह दें आऊज़ु बिल्लाही। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ बस ठीक है, ब्रैकेट में दूर रहने के लिए। इतना ही पता जी। आप मेरे साथ कहें आऊज़ु बिल्लाही। तर्जुमा करें आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बस रहना है मिनश शैतानिर रजीम। शैतान मरदूद से। तर्जुमा करें शैतान मरदूद से ब्रैकेट में क्या है? दूर रहने के लिए जी। ये कहें आप, अब तो आप करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। अफजल भट्ट साहब अगर कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। आगे दूर रहने के लिए ब्रैकेट में। दूर रहने के लिए ये हमने इत्तेफाक किया कि हम कहेंगे अपने आप को समझाने के लिए। उस्मान है, उस्मान सबूर
उस्मान सबूर है? नहीं, वो नहीं है। ये जो रजीम अब ये लफ्ज है पूरे का ये पूरा सबक मैंने उनको रिवाइज करवाया था और आज उन्हें आना चाहिए था। अच्छा जी, ये अब हम खत्म करने लगे हैं। कुरान मजीद का हमारा इतना है, ऊपर की तरफ आएंगे और इसको दोबारा दोहरा लें मेरे पीछे। आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जरा कहें। मैं अल्लाह की अल्लाह पनाह की मांगता पनाह हूँ मांगता हूँ मिनश्शैतानिर्रजीम, दूर रहने के लिए, शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। दूर रहने के लिए, शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। इस बात पे हमारा इत्तेफाक हुआ। ये जो और अगर रजीम कोई लफ्ज है इतराज है तो अभी बताइए जी। ये जो शैतान रजीम जो है, रजीम कर रजम से लफ्ज निकाल उसको रजम करते हैं। जी बिल्कुल, रजम से ही निकला है, जैसे कंकरियां मारते हैं उसी से मरदूद, इसी को कहते हैं रद्द किया हुआ, उसी से अर्रजीम। अर्रजीम के बल्कि मानी ये है कि बहुत ज्यादा रद्द किया हुआ। ये जैज ना अर्रहीम, अजीम, अलीम, इस ये जो वजन है इसके अंदर माने पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो हम नहीं कह रहे। अलिफ लाम तो पहले आगे हम चलते हैं जी। अच्छा जी, आज किया था जी कैसर भाई, जरा लगाइए हमारा सिलेबस। अच्छा, यहाँ देखिएगा सारे साथी, जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं उनको हम कलिमात कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस प्लीज नहीं होनी चाहिए। सर ये अकरम भाई आपके माइक से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, जरा देखिएगा किस वजह से आ रहा है। अकरम भाई। हाँ जी सर आपके माइक से शोर आ रहा है, अकरम साहब के माइक से। हाँ जी, अब ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम तो साहब। हम अकरम भाई से शुरू करते हैं। सर 10 मिनट रह गए हमारे सेशन को, 10 मिनट बाद ये नया फिर लिंक में शेयर मैं अभी करने लगा हूँ। सही है। अब मुझे ये बताइए कि कुरान मजीद के अल्फाज को कलिमात कहते हैं, और ये कलिमात कितने, उसके उनके नाम क्या क्या है कलिमात के, जो कल बताया था। या तो कुरान मजीद का लफ्ज जो है वो क्या होगा? इसम होगा। आप में जवाब कोई नहीं आ रहा। गुलाम सरवर साहब आप बताएं। जी इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा? हाँ जी, हाँ जी, इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। कल इस पे बहुत जरा बात हुई। आज हम इसम को शुरू करने लगे हैं, और इसम की दो किस्में यहाँ लिखी हुई हैं। वो कौन कौन सी लिखी हुई हैं यहाँ इसम की? इसम नकरा, इसम मारफा। नहीं, मारफा और इसमें नकरा। जी प्लीज, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एजाज कमर साहब कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसम के दो किस्में लिखी हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। अच्छा, नकरा के आगे क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? आम। आम नाम, ये खाने वाले आम नहीं है। जी जी, आम। ये आम का मतलब होता है जो हर किसी का नाम हो। जी, आम नाम जो बहुत सारे लोगों का नाम हो, जैसे इंसान है, बहुत सारे इंसान हैं। किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। जी, बैतुन है, घर, बहुत सारे घर हैं। अब इसका यहाँ जो लिखा हुआ है उसकी एक निशानी है नकरा की, वो अभी हम चार्ट लगाने लगे हैं, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं उसको। जी चार्ट लगाइए जरा, नकरा और मारफा वाला।
जी ये आ गया, इसको जरा एक्सपेंड करेंगे, हो सकता है। हाँ जी ये अच्छा, ये जी लिखा हुआ है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है कि नकरा क्या चीज होती है और क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी नकरा आएगा तो उसका तर्जमा हम करेंगे कोई एक, अगर वो एक होगा। अगर मजमुआ होगा तो हम कहेंगे कोई चंद लोग, कोई बाद लोग, कोई से कुछ लोग। इसके अंदर हम उनको पहचान नहीं सकते। जी जी ठीक है। जैसे कि पहला लफ्ज क्या है, मिसाल यहाँ के लिखी हुई है, वही नीचे है जरा देखिएगा। सामरातिन। सामर किसको कहते हैं मसूद साहब? फल को। सामरातिन। वैसे देर में रखिएगा, सामरातिन अनाज को कहते हैं अरबी के अंदर। फल के लिए लफ्ज होता है फाकिहा और उसकी जमा फवाकिहा होती है, लेकिन हम इसको फल ही कहेंगे। अच्छा, इसका तर्जमा करें। इसके आखिर में ते है और ते के नीचे क्या है? दो जेर हैं। दो जेर हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये दो जेर या दो जबर या दो पेश, ये नकरा की निशानी है, ये नकरा की निशानी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज इस्तिस्ना करनी है। आज मैंने दोबारा ये अपना सर को भेजा है कैसर साहब को। इसके अंदर कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज है ना इंसानों के नाम, उनको एक्सक्लूड कर देना है। ये मैंने जो लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने ये लफ्ज नहीं कहा था। क्या कर देना? और ये है सिर्फ कुरान मजीद के अंदर मेरे ज़हन के मुताबिक सिर्फ दो लफ्ज ऐसे आते हैं जिनके ऊपर तनवीन आती है। सुनने? जी सर सुन रहे। एक है मुहम्मदुन, सूरत तौबा के अंदर आता है गालिबन के वमा मुहम्मदुन। जी अबा अहद मिर रिजालिकुम, वो वहाँ मुहम्मदुन आता है। और नूहुन भी आता है। इन दो को निकाल के मेरे ज़हन के मुताबिक, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूँ, बाकी किसी जगह पर भी किसी नाम के ऊपर तनवीन नहीं आती, तो हम सिर्फ जो नाम है जाती नाम उनको निकाल रहे हैं जी। इसके अलावा बाकी कोई भी कुरान मजीद का लफ्ज होगा और उसके ऊपर तनवीन होगी। तनवीन का मतलब क्या है अपना एजाज कमर भाई? दो जबर दो जेर दो पेश। ये आपका नाम एजाज नहीं है। दो जबर दो जेर। दो जबर दो जेर दो पेश। सर मैंने और इसकी साउंड क्या होगी? नून की होगी। जैसे सामारातिन, सामारातुन, सामारातन। और तर्जमा करेंगे तो आपने सर जो आपने कहा मोहम्मद और नूहुन हुआ है और मोहम्मद है, तो ये जो ये नकरा नहीं होंगे, ये मारफा होंगे? जी ये मारफा होगा। मैंने कहा दो लफ्जों को या नाम को एक्सक्लूड कर दें, बस इतना कहा है। ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये कितना बनता है कुरान मजीद के अल्फाज में से, ये 1% भी नहीं बनता जी। नहीं जी, ये 1% भी नहीं बनता। लिहाजा पिछली जो हमने रिकॉर्डिंग करवाई थी उसके अंदर हमने कहा था कि नकरा की अलामत है कि आखिरी हरफ पर तनवीन होगी। जी ठीक है सर, हो गया जी, ठीक है। अब इसका तर्जमा कैसे करना है? अगर तो एक हुआ सामारातिन, तो इसके ज़हन में क्या रखना है? जमा है नहीं ना, सामारातिन तो जमा है ही नहीं। कोई फल मर कहते हैं फल को, तो ये वाहिद है।
कोई फल। इसका तर्जमा क्या करेंगे, या मैं करता हूँ तो क्या कहेंगे? कोई फल। कोई एक फल, कोई एक फल। एक फल। अब इसकी जमा ले लेते हैं। इसकी जमा आगे लिखी हुई है समरातिन। नहीं, समारातिन नहीं, ये याद रखिएगा। आतिन, ये मैंने आपको याद करवाना है जी, समरातिन। अब ये जमा है, इसका तर्जुमा हम करेंगे कुछ या बाज या चंद। अपने ज़हन में रखेंगे कि ये जमा है लेकिन खास नहीं है। कुछ फल। आगे लफ्ज़ क्या आ रहा है? हुदन। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, ये हम पढ़ेंगे आयत। हुदन का मतलब क्या है? कोई भी हिदायत, यानी कि जब कोई कहेंगे तो वो नकरा बन जाएगा आम। वो एक चीज नहीं होगी, वो बहुत सारी, कोई भी हो सकती है। अच्छा, एक तो तरीका मैंने बताया नकरा का ये। प्रोफेसर साहब एक मैं आपको इल्मी 1 मिनट से कम रह गया हमारे पास। 1 मिनट रह गया है, ठीक है। अब दूसरा मैं ये बता रहा हूँ जो उसूल कि अगर मारफा का पता होगा कि 5 अल्फाज, 5 किस्में हैं, मारफा से 7 हैं। मैंने आपके लिए 7 में से सिर्फ 5 जो हैं, आपका चूंकि 5 उंगलियां हैं, उन 5 उंगलियों पर आज हमने वो याद करने हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी इसम होंगे वो नकरा होंगे। ये दूसरा उसूल बता रहा हूँ। पहला उसूल क्या बताया? 2 जबर 2 से 2 पेश। 2 पेश। दूसरा उसूल जो इल्मी है वो क्या है कि जो मारफा के, इसको ऊपर करें जी जरा प्लीज जी, बस जी।